Hello dosto, welcome to Siddhi Punjab. So today we are going to discuss these current affairs that are relevant for Punjab PCS examination for the date of 10th to 9th to 10th May. ठीक है जी, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵਿਦ ਐਜ਼ ਮੈਨੀ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ। ਆਲਸੋ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। If you want to gain the benefit of scheduled preparation, take the test series, test yourself, analyze yourself, talk to us how you can improve, ਕਿਹੜੇ areas ਹੈ, ਕਿਹੜੇ subjects ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ weak ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, right? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ test series. Do not be fearful of test series, rather use it as a tool to hone your preparation. Right, so take the test series today. You can very well benefit from it and you can always talk to us whenever there is an issue, right? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇਹ 7 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲੂਡਡ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ 50th ਡੈਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਇਟ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਸਟ ਆਫ ਯੂ ਮਾਈਟ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਕਾਫੀ ਹਾਈਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, right? Second, Kalibain rivulet associated with Guru Nanak Dev Ji come back to soon life. ਤਾਂ Kalibain क्या है, गुरु नानक देव जी नाल किवें रिलेटेड है ते हुणे किवें रिवाइव कीती जा रही है। We will discuss that. Very important history ਦੇ perspective ਤੋਂ ਵੀ, environment ਦੇ perspective ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ important article है. We will discuss that. Then government school to be named after Kaur Singh. Again, third time in the past month this personality is in news. ठीक है जी, ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट ਦੇ 4 important sports person of Punjab that will be included in the books of Punjab. मैं ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੈਟਰਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਲਿੰਕ ਇਟ ਹੇਅਰ ਜਸਟ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦੈਟ। ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, right? Then Chinese militia vessels sail close to Indian warship. ਇਹ क्या है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ जुडिशियल पेंडेंसी ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਜ਼ ਬਰਡਨਡ ਵਿਦ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੇਸਿਸ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 40% ਆਫ ਦ ਕੇਸਿਸ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਆਰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ, ਫ੍ਰਿਵਲਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੋਲਵਡ ਬਾਈ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਲੀਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? GS2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਈਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਸ 'ਤੇ, ਰਾਈਟ? ਦੈਨ ਆਪਣੇ NSA ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਸਾਊਦੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਫॉर ਟਾਕਸ ਗਲਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ, ਰਾਈਟ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਆ ਨਵੀਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕਿਆ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਮਿਡ ਈਸਟ, ਰਾਈਟ? ਫਾਈਨਲੀ ਐਰਬ ਲੀਗ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ। Batalvi's epic Luna staged to mark his 50th anniversary. शिव कुमार बटालवी हर दिल जले नूं इन्हां दी पोइट्स दा इन्हां दी पोइम्स दा अंदाज़ा है। ही इज़ नोन एज दी बिरहा दा सुल्तान और ऑल्सो द किंग ऑफ सैपरेशन जिन्हां नूं तुसीं कह सकते हो, राइट? ही हैज़ रिटन मोस्ट ऑफ द पोइम्स एंड वन ऑफ द मोस्ट flavored poems that can describe the pain of separation, राइट? पेन ऑफ सैपरेशन ये याद रखना है। बेसिक क्वेश्चन आ सकता है बिरहा दा सुल्तान किनू क्या जाता है? शिव कुमार बटालवी, राइट? मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स एड्रेस द पेन ऑफ सैपरेशन फ्रॉम वनस लवर और फ्रॉम वन वी वॉन्ट टू गेट कनैक्टेड टू, समथिंग लाइक दैट, राइट? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮਾਡਰਨ ਸੌਂਗਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਮਸ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਸੌਂਗ ਹੈ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀਜ਼ ਪੋਇਮ, ਰਾਈਟ? ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ। these all famous songs they have been modulated from Shiv Kumar's basic poems, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬੇਸਡ ਅਵਾਰਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ।
ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯੰਗੈਸਟ ਏਜ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ 30s ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਏਜ 'ਤੇ ਆਪਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੈਟ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਦੀ ਲਵਡ ਵਨ ਐਂਡ ਹੀ ਰਿਸੀਵਡ ਦਿਸ ਔਨਰ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਯੰਗੈਸਟ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਨੇ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ। ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਅਪ ਲੂਨਾ ਲਈ, ਰਾਈਟ, ਫॉर ਹਿਜ਼ ਰਾਈਟ ਅਪ ਲੂਨਾ, right? This also you have to remember. There are some other important poems that he gave, ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਨਾ, ਲਾਜਵੰਤੀ, ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਰਾ ਤੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਲੂਨਾ, ਰਾਈਟ? So please try to remember this. At least these 3-4 facts are very important. Keep them in your mind and they can be asked in the questions and you will be able to answer the prelims questions on that. Right? Now, Kali Bay holy rivulet associated with Guru Nanak Dev Ji to come back to life soon. ठीक है जी, ਹੁਣ अगर तुसी थोड़ी बहुत पंजाब दी हिस्ट्री पढ़ी है, आप जल्द ही पंजाब दा कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। इफ़ यू आर ऑल इंटरेस्टेड just keep waiting and message me as the dates you want me to release it. I'll प्लान इट अकॉर्डिंगली। बट काली बेन जिहड़ी है पंजाब हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज़ द रिवर जिथे पहली पातशाही गुरु नानक देव जी नूं तुसीं कह सकते हो एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई सी, राइट? अगर गुरु नानक देव जी की लाइफ का तुहानूं थोड़ा बहुत अंदाज़ा है तो बचपन तो ही वो जिहड़े सी बहुत ही शांत ते वर्ल्डली चीज़ों नालों थोड़ा डिसकनैक्टेड रहने वाले इंसान सी। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲੀ ਬੇ ਰਿਵਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। He dipped for once in the river and he did not return back for 3 days. And after 3 days when he got out, he came out with enlightenment, saying the words that there is no Hindu, there is no Musliman, right? It is believed that that is the time when he attained his enlightenment। ठीक है, उन्हां नूं समझ आया कि क्या सही है क्या गलत है दुनिया दे विच, दुख तकलीफ़ा क्यों ने, गुरु दा मैसेज, गॉड दा मैसेज क्या है। गॉड दा मैसेज इन्हां दे अकॉर्डिंग एक ही सी दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड, देयर इज़ नो सिख हिंदू मुसलमान, देयर इज़ ओनली वन गॉड दैट इज़ कीप टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ अस, राइट? सो काली बे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस रिवर च गुरु नानक देव जी डुबकी लगाते हुए एनलाइटनमेंट आई सी इस तरीके नाल। तां काली बे का नाम याद रखो, ये सुल्तानपुर लोधी विच सिचुएटेड है, ये बारे भी याद रखो, right? That is what is written here. Sikhs believe that Guru Nanak Dev Ji stayed in Sultanpur Lodi on the bank of Kali Bay for more than 14 years and attained enlightenment after taking a dip in the rivulet। ठीक है जी, हुण प्रेजेंट डे ते क्या इशू हो रहा है, काली बेन जिहड़ी है काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। आपां वी हैव बिन डिस्कसिंग इन करंट अफेयर्स अबाउट डिफरेंट रिवर्स एंड वाटर बॉडीज़ दैट आर गेटिंग पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज़। ठीक है जी, आपां बुड्ढा नाला लुधियाना की गल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, राइट? इस तरीके नाल जिहड़ी ये काली बे भी है, इट हैज़ ऑल्सो बीन वेरी हाईली पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है जी, तो ये ऑलमोस्ट सीवेज टाइप बन गया सी until the time when the cleaning and restoration project of this river was undertaken। सब तो पहला था बलवीर सिंह सीचेवाला जिन्हां नूं ईको बाबा भी कहा जाता है because he has contributed a lot in getting the रिवर्स क्लीनड इन पंजाब, स्पैशली पंजाब दे विलेजेस विच साफ पानी पहुँचे, उस च काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन की है। तो इन्हां ने ही ये इनिशिएटिव आपदे वल्लों चलाया सी इस रिवर नूं क्लीन करन दा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जदों इन्हां दे एफर्ट्स जिहड़े रिजल्ट शो करन लग गए तो पंजाब गवर्नमेंट ने खुद इस रिवर नूं क्लीन करन लई गवर्नमेंट लैड प्रोजैक्ट जिहड़ा है लॉन्च कर दिता गया सी, राइट? एंड नाउ it is being said that 90% of the work on the cleaning of the river has been completed। हर जगह ते जिथे भी काली बे जिथों भी लंघदी है 165 किलोमीटर दे एक्सटेंट विच 90% of the cleaning work has been
completed with the help of सीचेवाला मॉडल। सीचेवाला मॉडल क्या है, इस देखो सीवेज पास करन लई डिफरेंट पॉन्ड्स बना दिते जाते हैं, राइट। जो पानी इन्हां चों पास करता है, इन्हां दा स्ट्रक्चर इस तरीके नाल हुंदा है कि डिफरेंट इंप्योरिटीज़ जिहड़ियां हैं इन्हां चों खत्म हुंदियां रहिंदियां जदों जदों पानी इन्हां चों पास करता है, राइट। एंड फाइनली वी गेट क्लीन सेफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज़, right। So that is how this Kali Bay has been revitalized under the supervision of Sichewala, right, who is also known as Eco Baba। This question can also be asked in prelims कि Eco Baba किनू किया जाता है, तो इवन इंटरव्यूज़ च जे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। इन्हां नू टॉप 30 हीरोज़ ऑफ इन्वायरमेंट दे विच भी गिनती की जाती है टाइम मैगजीन द्वारा। जो टॉप 30 हीरोज़ जो रिकगनाइज़ किए गए सी उन्हां विच भी ईको बाबा या सीचेवाला का नाम आता है, राइट। सो इस काफ़ी सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इस आर्टिकल च, सिर्फ लिख के रखो आपदे कोल। काली बे, सुल्तानपुर लोधी, एनलाइटनमेंट, ईको बाबा, ऑल दीज कीवर्ड्स लिख के रखो। अगर कोई क्वेश्चन आता है यू विल हैव द आंसर विद यू, राइट। नैक्सट आर्टिकल गवर्नमेंट्स, हाँ राइट, गवर्नमेंट स्कूल्स, ये तो यू नो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਟੂ ਬੀ ਨੇਮਡ ਆਫਟਰ ਬਾਕਸਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਈਟ। ਆਈ ਲਿੰਕ ਦ ਵੀਡੀਓ ਹੇਅਰ ਜਿੱਥੇ 4 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਇਜ਼ ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ठीक है। उस तो अलावा मिल्खा सिंह भी ने ते बलबीर सिंह जूनीयर सीनियर भी ने, राइट। तो इस तरीके नाल 4 स्पोर्ट्स परसनस नू इनकलूड किया जा रहा है। कौर सिंह जी की अगर तुसी कॉन्ट्रीब्यूशन ते लाइफ स्टोरी देखनी होवे, देखो इन्होंने आर्मी 1971 विच ज्वाइन की, उस तो बाद इन्हों रियलाइज़ होया, इंटरस्ट जागया बॉक्सिंग दे विच, तां कुछ सालों बाद ये आर्मी के थ्रू ही बॉक्सिंग दे विच कन्वर्ट हो गए। उस तो बाद इन्होंने बॉक्सिंग काफ़ी देर खेलिया तो इंडिया नू काफ़ी सारी रिकगनाइजेशन जी इन्होंने प्राप्त कराई। 6 गोल्ड मैडल्स इज़ अ बिग थिंग। 6 गोल्ड मैडल्स ही वॉन इन वेरीअस इंटरनेशनल कॉम्पीटिशन, स्पैशली एशियन गेम्स, जी एशिया दे विच गेम्स होंदियां जिस चाइना, इंडोनेशिया, यह जी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जिहड़ियां पार्टिसिपेट करदियां है, जिन्हां दे प्लेयर्स काफ़ी स्ट्रोंग हुंदे ने, उन्हां दे खिलाफ असी 6 गोल्ड मैडल जो कुछ मैडल्स भी जिते ने, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज़ वॉन मैनी एक्कोलेड्स। अर्जुना अवार्ड इन्हों मिलिया, पद्मा अवार्ड मिलिया इन्हों, पद्मश्री का अवार्ड मिलिया, वशिष्ठ सेना मैडल विच इज़ फॉर एग्जैम्पलरी सर्विस इन आर्मी मिलता है, वो भी मैडल इन्हों दिता गया, राइट। इन्हां दी यही कॉन्ट्रीब्यूशन करके इन्हों पंजाबी बुक्स के सिलेबस का पार्ट बनाया जा रहा है। तो हुण गवर्नमेंट खनल खुर्द के स्कूल नूं, गवर्नमेंट स्कूल नूं इन्हां दे नाम ते रीनेम करेगी, राइट। इन्हां दे नाम का एक मैमोरीयल भी बनाया जाएगा, राइट। सो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कौर सिंह बारे लिख के रखो। प्रीलिम्स च ये आने की पॉसिबिलिटी है, पंजाब दे जिन्ने भी पेपर ने MCQ टाइप क्वेश्चनस ये टॉपिक ते ये पर्सनैलिटी ते क्वेश्चन आ सकता है, राइट। नैक्सट टॉपिक चाइनीज़ मिलिशिया वैसल्स सेल क्लोज टू इंडियन वॉरशिप्स। तो आप लास्ट डिस्कशन च ही डिस्कस किया थी दैट इंडिया ASEAN countries they are conducting their first maritime exercise together, ठीक है। मैरीटाइम एक्सरसाइज टूगैदर करन दा क्या मतलब है कि दोनों कंट्रीज़ दी शिप्स, दोनों कंट्रीज़ दी नेवीज़ जिहड़ियां है वो मिल के दे विल शोकेस ईच अदर्स कैपेबिलिटीज़ टू ईच अदर, इंटरऑपरेबिलिटी बनाएंगे, एक दूसरे नाल शेयरिंग करनगे। बेसिकली यह कोऑपरेशन वाली एक्सरसाइजिज होंदियां हैं। इट शोज़ द डीपनिंग टाइज। अगर क्राइसिस सिचुएशन आंदियां हैं तो दोनों कंट्रीज़ जिहड़ियां है वो मिल के काम करन दी, कोऑपरेट करन दा विजन नाल ये एक्सरसाइजिज जिहड़ियां है कंडक्ट करदियां है। नाउ दिस इज़ नॉट लाइक्ड बाय चाइना, ओबवियसली इत्थे इंडिया जिहड़ा है दिस इज़ द मेनली द रीज़न। ये जी तुम कंट्रीज़ देख पा रहे हो ये ASEAN नेशनस ने, बेसिकली थाईलैंड, कंबोडिया, राइट, सिंगापुर, फिलीपीनस, इंडोनेशिया, ये सारे जोड़े ने, वियतनाम वगैरह, ये सब जोड़े ने ASEAN नेशनस है। अगर इन्हां नाल मिल के इत्थे एक्सरसाइज की जाएगी, दिस इज़ नॉट कंड्यूसिव टू चाइनीज़ इंटरस्ट, जोड़ा कि साउथ चाइना सी ते आपदा दबदबा बना के रखना चाहता है। इट डज़ नॉट वॉन्ट एनी अदर कंट्री, एनी अदर पावर इंक्लूडिंग इंडिया,
Japan, USA, Australia, or UK, France, any other country to intervene in this area especially, because China considers it as its own territory, backyard, ठीक है, as its own resource, ठीक है। 9 लैंड भी उन्होंने बनाई हुई है शोकेसिंग देयर टेरिटोरियल क्लेम। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਸੀਆਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਸੀਜ਼ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਥ੍ਰੈਟ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਚਾਈਨਾ ਡਸ ਨੋਟ ਵਾਂਟ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕरें, दैट विल बी अगेंस्ट द इंटरस्ट ऑफ ਚਾਈਨਾ। ਚਾਈਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏਗਾ ਫਿਰ। दैट इज़ वाई नाउ वी सी दैट चाइना इज़ रिएक्टिंग। हाउ इज़ चाइना रिएक्टिंग? ਇਹਦੀ मिलिशिया शिप्स ਨੂੰ दे हैव सेंट वेरी क्लोज टू द प्लेस वेयर एक्सरसाइज इज़ बीइंग हेल्ड, राइट। मिलिशिया शिप्स क्या है? वैसे तो ये मर्केंटाइल शिप्स होंदियां चाइना दियां, बट इट इज़ सीन दैट ये शिप्स नू चाइना सर्विलेंस लई या आपदे मिलिटरी पर्पसेस लई भी इनडायरैक्टली यूज़ करता है। दुनिया नू दिखाने लई तां ये ट्रेड वाली शिप्स है, मर्केंटाइल शिप्स है जिहड़ियां समान चाइना का एक जगह तो दूसरी जगह लैके जा रही हैं, बट एक्चुअल च चाइना हैज़ बीन सीन यूजिंग दीज शिप्स फॉर इट्स मिलिट्री नेवल पर्पसेस, right? So now these ships, they sailed very close to the place where India ASEAN exercise was being conducted, showcasing that China will not sit silently if India is present in its backyard, right? So इस ऑबजरवेशन ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਸੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ then very important article, 40% of the cases by center and state are frivolous। तो देखो ये होंगे कि जुडिशरी च सिर्फ आप लोग तो नहीं केस दर्ज करते, देर आर मैनी केसेस दैट आर बीइंग लॉग्ड इन बाय दी गवर्नमेंट ऑल्सो, चाहे सेंट्रल लैवल ते होवे चाहे स्टेट लैवल ते होवे, दे ऑल्सो सू मैनी पीपल, राइट। जिवें हुण समझ लो तुसी स्टेट गवर्नमेंट इंपलॉय हो ला लो, एंड गवर्नमेंट ने तुहाडी किसी कारण करके पे नहीं दी 1 महीने की, राइट, एंड यू आर क्लेमिंग दैट यू नीड पे, यू नीड कंपनसेशन ऑल्सो दैट उन्होंने पे नहीं पे की, दैन स्टेट गवर्नमेंट में फाइल अ केस अगेंस्ट यू दैट दिस पर्सन डज नॉट डिजर्व अ पे नीदर कंपनसेशन, सो वी आर नॉट पेइंग दैम, राइट। दिस काइंड ऑफ केसेस कैन बी देयर। सो हुण सुप्रीम कोर्ट की कह रहा है कि many cases that are filed by government itself they are useless या frivolous, ठीक है। जिवें इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि अगर किसी बंदे ने 700 रुपया महीने का कुछ क्लेम कर रहा वो केस दे विच, तां गवर्नमेंट उन्होंने 700 रुपया देन दी बजाए केस लड़ रही है उस बंदे दे अगेंस्ट, जिहड़ा कि केस उन्होंने 7 लाख रुपए वर्थ का पै सकता है, राइट। टैक्स पेयर दी 7 लाख दी मनी दे माइट बी स्पेंडिंग ऑन अ केस दैट डील्स विद अ मॉनेटरी अमाउंट ऑफ 700 रुपीज़ ओनली, राइट। ये जस्ट उन्होंने एक मतलब एग्जाम्पल दी है कि इस तरीके के काफ़ी यूजलैस केसिस है जिहड़ी गवर्नमेंट फाइल कर रही है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि गवर्नमेंट शुड अवॉइड गेटिंग इन्वॉल्वड इन सच काइंड ऑफ केसिस, दे शुड सिट एंड डेलीबरेट, दे शुड वर्क ऑन मीडिएशन। मीडिएशन का की मतलब हुंदा है कि तुसी दो लड़न वालियां पार्टीज़ जिहड़ियां है वो इकट्ठे बैठ जांदियां ने, ठीक है। 2 पार्टीज़ दैट आर इन कन्फ्लिक्ट, पार्टी ए एंड बी, दे विल सिट टुगैदर, दे विल हैव अ मीडिएटर, एक विच वाला आदमी विच हैज़ न्यूट्रल इंटरस्ट दैट विल लिसन टू देयर इशू एंड ट्राई टू रिजॉल्व द इशू, ठीक है, या दोनों। तो इस तरीके की मीडिएशन यूज़ करो, सुप्रीम कोर्ट कहता है, रादर दैन लिटिगेटिंग ब्रिंगिंग दी केसेस टू कोर्ट, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी देखो सुप्रीम कोर्ट या अपने इंडिया के कोर्ट्स विच पेंडेंसी जिहड़ी है केसां दी बहुत बहुत हाई है। इफ़ यू सी द नंबर्स ऑफ 2023 दैट आर प्रेजेंटेड इन दिस आर्टिकल ऑफ द न्यूज़पेपर, ऑलमोस्ट 70,000 केसिस तो सुप्रीम कोर्ट च पेंडिंग पे ने, ते अगर अपने सारे हाई कोर्ट्स की गल करिए 61 लाख तो ज़्यादा केसिस जिहड़े अपने हाई कोर्ट च पेंडिंग पे ने, राइट। सो फिर इस यह जे केसिस लियाउण दा क्या मतलब आंदा है जिस च तुसीं 700 रुपया लैन देन लई लड़ रहे हो, राइट। सो कहने का मतलब है दैट द गवर्नमेंट्स मोटो शुड बी वर्किंग ऑन मीडिएटिंग फॉर सच स्मॉल केसेस रादर दैन गोइंग टू द कोर्ट एंड वेस्टिंग कोर्ट्स टाइम एंड रिसोर्सेज एंड ऑल्सो गवर्नमेंट्स ओन टाइम एंड रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, यू कैन यूज़ इन
any question that is asked on judiciary ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ question at least ਆਉਣ ਦੀ very high probability ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ important part ਹੈ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੀ ਹੈ GS2 ਵਿੱਚ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੀਪ ਦਿਸ ਡਾਟਾ ਵਿਦ ਯੂ, ਕੀਪ ਦਿਸ ਲਾਈਨ that was given by our Chief Justice of India DY Chandrachud, that the motto of union government agencies should be to mediate not litigate। ठीक है जी, ये फैक्ट्स थोड़े लिख के रखो, कम आते आंसर राइटिंग विच। Next topic that we are going to discuss, Doval in Saudi Arabia talks on Gulf India link project। ठीक है जी, अपने NSA ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, he is visiting Saudi Arabia ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ another two countries that is USA and UAE are also present, right now। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? basically to ensure secure and prosperous Middle East region, they have conducted this quadrilateral meet, right now। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ all the Gulf countries will be connected, all the Arab countries, all the Gulf countries, they will get connected through railways and they will get connected to India via shipping ports, right। अगर तुसी just open the map and you will see that this is how, this is where you will find the Gulf countries, right, and they will be interconnected internally ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ railways ਨਾਲ connect ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ and with India they will be connected through shipping lanes, so that ਇਹਨਾਂ ਦਾ trade, ਇਹਨਾਂ ਦੀ connectivity, ਇਹਨਾਂ ਦੀ economic exchanges ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਸਕਣ and entire region should grow। ठीक है, नहीं तो तुसी देखो कि ये रीजन च क्या होंदा रहा है कि टेररिज्म करके या रिलीजियस रीजनस करके they have been fighting with each other for years, right now what we want is that the infighting should get reduced and rather they should be working on cooperation and exchanges, right। So that is why this connectivity project is being envisaged, right। That is what is written in this। India nu what will be the fayda that India will be getting from this connectivity projects, right। India will act as a major power in the international dynamics, right। India is major cooperation project which involve ho raha hai, that is a big deal, right। And then India will also be strengthening its ties with Middle East when it is getting engaged in these connectivity projects। इसका मतलब क्या है? ये आपकी एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करेगा अगर ये रिलेशन मिडल ईस्ट नाल स्ट्रोंग होंदे हैं। डायस्पोरा के इंटरस्ट ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ डायस्पोरा रह ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ इंटरस्ट, सो एवरीथिंग दैट इज़ लिंक्ड टू मिडल ईस्ट दैट विल गेट बेनिफिटेड, राइट। सो ओवरऑल लार्जर इंपैक्ट इस प्रोजेक्ट का होएगा, राइट। हजे तो देखो ये टॉक्स ची है तो हजे ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ सिग्निफिकेंस नहीं है, बट अगर एक्चुअल च कोई स्टैप लिखता जाता है टू मेक दिस अ रियलिटी, टू मेक रियल दिस कनैक्टिविटी प्रोजेक्ट, दैन इट विल बी हाईली इंपॉर्टेंट। हजे तो ਇਹਦਾ सिर्फ थियोरैटिकल सिग्निफिकेंस है। इट विल मीन दैट इंडिया विल बी डीपनिंग इट्स टाइज विद मिडल ईस्ट, तो मिडल ईस्ट नाल साडे अगर टाइज डीपन होणगे तो ऑल द रिलेटेड इंटरस्ट विल ऑल्सो गैट इनहांसड, जिमें कि असीं एनर्जी सिक्योरिटी चाहते हैं, डायस्पोरा इंटरस्ट चाहते हैं, चाइना नू काउंटर करना चाहते हैं, टैररिज्म नू फाइट करना चाहते हैं, इकनॉमिक ट्रेड बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। UAE तो किन्ने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इंडिया कैन ऑल्सो सेल प्रोडक्ट्स, सो दैट इज़ हाउ इट विल बेनिफिट अस, इट विल हेल्प अस स्ट्रेंथन आवर टाइज विद द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, राइट। लास्ट आर्टिकल अरब लीग वॉज इन न्यूज़, तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स जा सकता है, इसलिए ये थोड़ी फैक्चुअल डिटेल्स कर लेने हैं। 1945 विच एस्टैबलिश किया गया सी, 6 फाउंडिंग मैंबर्स सी ये, जिन्हों तुसी इस निमोनिक नाल याद कर सकते हो, लाइज JS, वॉट इज़ इट, लेबनन, इराक, राइट, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया, राइट। इस एक वड्डी इस्लामिक नेशन नहीं है या अरब नेशन नहीं है, दैट इज़ ईरान, ठीक है, ईरान नहीं है। अगर तुसी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो तुसी देखोगे कि अरब लीग इज़ रिलेटेड टू इजराइल पैलेस्तीन इशू नाल काफ़ी रिलेटेड रही है। ये इजराइल दे अगेंस्ट रहे सी ये लोग उस टाइम ते, दे वर नॉट विलिंग कि इजराइल जी कंट्री इस अरब हार्टलैंड विच बने, तो उस टाइम ते ये अरब लीग का जन्म होया सी टू
प्रोवाइड यूनिटी टू द अरब कंट्रीज सो दैट दे कैन फाइट इजराइलीज़। ठीक है, देखो तई ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर बनी हुई है, इस टाइम ते ही इजराइल दी इस्टैबलिशमेंट पूरी स्ट्रोंग हो गई सी ओवर दी ईयर्स। ठीक है, इसीलिए सारी वही कंट्रीज़ तुहानूं मिलणगियां, सीरिया, Saudi Arabia, Iraq, all of these countries were fighting at that time to get Israel removed from the heartland of Arab। ठीक है, ईरान इज़ नॉट अ पार्ट, ये याद रखना है, इस ते ही क्वेश्चन बनेगा इस फैक्ट ते ही, राइट। हु आर दी मैंबर्स, ईरान एक लिखिया ही होना है, तो तुसीं ये याद रखना है ईरान इज़ नॉट द मैंबर, राइट। करंटली अगर तुसीं देखो तो 22 मैंबर्स हो गए ने इस ग्रुपिंग दे। सीरिया नूं 2011 विच कट दिता गया सी बिकॉज ऑफ ऑल द डिस्टर्बेंस दैट इज़ गोइंग ऑन इन सीरिया, बट नाउ अगैन इट हैज़ बिन रीइंट्रोड्यूस्ड इन द अरब लीग, राइट। बेसिकली अरब लीग टुडे वर्क्स टू cooperate, to bring about cooperation amongst the Arab countries on various economic and military affairs, right। So if actual information लिख के रखो prelims the exam ले, it is important। That is all for today's discussion। Thank you so much for watching।